Yes. Yes, so I shall start. Yeah, man. Seize Seize, every opportunity. Go ahead, go ahead. seize opportunity to play. Seize every moment that you are handling money to make the money multiply by feeling good. Feel love when you pay for anything. Feel love when you hand over the money. Feel love with all your heart by imagining how much your money is helping the company and the staff who work for the company. It will make you feel good about the money you're giving instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. Here is a game you can play so you remember to feel good about money each time you handle it. Imagine a dollar bill. Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing a lack of money. Each time you handle money, deliberately flip the bills so the front is facing you. Put bills in your wallet with the front facing you. When you hand over money, make sure the front is facing upward. By doing this, you are using money as your cue to remember to feel good about plenty of money. If you are using a credit card, then flip the credit card to the front where your name is, because the front of your credit card is telling you that there is an abundance of money as it has your name on it. When you pay for anything, as you hand over your card or money, imagine an abundance of money for the person you are handling to it, yeah, and mean it. Whatever you give out, you receive back. Imagine that you are wealthy right now. Imagine that you have all the money you need right now. How would you live your life differently? Think about all the things you would do. How would you feel? You would feel different. And because you would feel different, you would walk differently. You would talk differently. You would hold your body in a different way. And you would move differently. You would react differently to everything. Your reaction to bills would be different. Your reaction to people, circumstances, events, and everything in life would be different because you feel different. You relaxed. एक्सचेंज करिए ना MI का लेना है फोन में एक बार You feel happy. You would be easygoing about everything. You would enjoy every day without giving any thought to tomorrow. That's the feeling you want to capture. That is the feeling of love for money. And that feeling is magnetically. Magnetically sticky. Yes. So you have to seize every moment. एक भी moment छोड़ना नहीं है. To give love to money. Even when you are paying somebody. बढ़िया जब चलती पैसा है जा रहा है, एक मिनट, किसका आवाज आ रहा है? BBC. एक मिनट, admit. So when you are giving money, जब आप दे रहे हो, उस वक्त भी इस भाव से देना है कि आज मैं दे रहा हूँ तो ऊपर वाला मुझे बहुत देगा. No problem. I'm not afraid. There is abundance. Abundance सोच के देना पैसा. And think that when you are giving somebody, there is to some reason. समझो इलेक्ट्रिक बिल भरे तो आपने इलेक्ट्रिसिटी वापरी है, you use that electricity. आप समझो मतलब गैस का पैसा दे रहे हो तो आपने गैस वापरा है. If you're paying to somebody, तो either you love that person, आप अपने बेटे को दे रहे हो या कोई अपने खास दोस्त को दे रहे हो, तो इस भाव से दो कि उसके घर में उन्नति आए. He flourish. Don't think that पैसा वापस आएगा नहीं आएगा. वो फीलिंग से जितना ही पैसा देना, जितना आप छोड़ सकते हो. If you give you the bad feeling, give smaller amount, but give with a good this feeling. Don't give that worry कि पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा. ये सोचना कि उसके घर पे उन्नति आए. He flourish. तो बोलते हैं इसमें हमको गेम खेलना चाहिए.
ऐसे मनी के लिए अच्छी भावना लाए। एक तो इन्होंने बोला है कि जब भी आप पैसे देते हो तो कोई फ्रंट पार्ट होता है, इसको ऊपर रख के दीजिए, और जब आप वैलेट में रखते हो तो भी फ्रंट पार्ट को ऊपर रखो। दैट फ्रंट पार्ट विल सिग्निफाई abundance. You have to keep in your mind, जब ऊपर का दिखता है भाग, मतलब इट इज abundance. While paying somebody, keep that front part up. So this is a cue for you to have love for money. While giving somebody, you are giving with love. समझो आप रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, तो कितना उत्तम खाना मिला आपको, आपके दोस्त कितने खुश हो गए, आपका परिवार कितना खुश हो गया। हम लोग कई बार कहते हैं अरे इतना बिल आ गया। नेवर से दैट। जो बिल है वो तो भरना ही है, ऐसा है ना कि आपके बोलने जाएगा हाँ यू कैन से इतना बिल है, कुछ ज्यादा लग रहा है, चेक करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इवन देन यू शुड हैव अ गुड इन माइंड कि भाई मैं चेक करके मिस्टेक तो नहीं हो गई, वो लूट रहा है, ये लोग बदमाशी करते, ऐसे वर्ड हमको नहीं वापरने। ऑलवेज हैव अ गुड फीलिंग, क्योंकि आप है ना दुनिया को देखते हो ना, यू सी थ्रू योर आईज what is seen there, but what to capture it through your mind. आपकी सोच कैसी है। आपने देखा कि एक सामने झाड़ है, उसपे फूल खिले हुए हैं, आपने देखा मैंने भी देखा, समझो हम दोनों खड़े, बट आप डिस्टर्ब हो तो आपको फूल में कांटे दिखेंगे और मुझे कांटे दिखेंगे नहीं। इट इज लाइक अ गर्ल गोइंग टू अ रूम वेयर देयर लॉट्स ऑफ मिरर्स। तो पापा को पापा देखो कितने है, बट जस्ट आई लव यू, तो बोलते आई लव यू, सारे की सारे की इमेज की थी लड़की, और सब बोलते आई लव यू। फिर एक उद्गत बच्चा आता है, उड़न मतलब तेरा मस्तीखोर बच्चा बच्चा आता है, बोलता है हाउ डेयर यू लुक एट मी लाइक दैट। सब उसको बोलने लगते हैं हाउ डेयर यू लुक एट मी। वो घबरा जाता है। So our life is like a mirror. There are multiple mirrors. What you throw at them, or what they see in you, they will give back. आप में से जो दिखता है वही वापस आएगा आपको। It's like an echo in a mountain. When you say something, it comes back. तो पैसा देते वक्त आपको इतने अच्छे भाव से देना है कि आपको कुछ मिला है उससे, आपने कोई सर्विस ली है, या आपने कोई चीज वापरी है, या आपने कुछ खरीदा है। सो गिव विद द लव कि ये पैसा जाता है जिसके पास, उसकी भी उन्नति हो, उसको भी फायदा मिले, मेरा पैसा फले। तो इस टाइम हैंडल मनी, सी दैट यू कीप द फ्रंट पार्ट अप, दैट इज अ क्यू फॉर यू फॉर अबंडेंस। इवन इफ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड, तो फ्रंट पार्ट ऊपर रखिए व्हेन यू आर गिविंग। दैट विल ब्रिंग, दैट विल गिव यू a cue to remember that you have to love money. हमेशा आपको एक क्यू मिलना चाहिए कि पैसा को मुझे प्यार देना है। ऐसा नहीं हो जाए कि आप मतलब विदाउट एनी बैड इंटेंशन आप कुछ बोल दो, अरे क्या यार कितना पैसा आ गया, कितना बिल आ गया, दैट विल बिकम अ नेगेटिव पार्ट। सो व्हेन यू पे फॉर एनीथिंग, यू हैंड ओवर कार्ड ऑफ मनी, इमेजिन abundance of money for the person you are handling, you are handing to, इसको दे रहे हो उसके लिए कि इसके घर पे बरकत हो। वॉट एवर यू गिव आउट यू रिसीव, तो आप उसके लिए बरकत सोचोगे तो आपको अपना बरकत मिलेगी। आप ये भाव से दोगे मुझे पैसा वापस मिलने वाला है, तो वो भाव, दैट इज नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव इज वेन यू थिंक अबाउट दैट पर्सन हु इज टेकिंग, क्यों आपने उससे कुछ लिया है तो आपने दिया है, तो उसके घर पे बहुत भरपूर हो, उसके घर पे अबंडेंस हो। और हमको हमेशा यही सोचता है कि हमारे पास बहुत है, वी आर इन अबंडेंस, हैविंग फैंटास्टिक लाइफ, क्या लाइफ है अपनी। when you always think about your as an abundance in abundance, see, घमंड नहीं होना चाहिए, that's a different thing। एक ईगो और फीलिंग गुड, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम बोलते नहीं आई एम फीलिंग, आई एम abundance, पर उसी को हमने सर पे चढ़ा दिया, एक दिल तक रखा, तब तक वाइब्रेशन आएंगे। उसी फीलिंग को हमने दिमाग पे ले लिया, इट विल ब्रिंग ईगो, कि मैं सब कुछ हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। हमको ये फीलिंग को दिल में रखा, हमको फीलिंग चाहिए। वी डोंट वांट दैट, द थॉट हैज टू बी वेरी हम्बल, बट द फीलिंग शुड बी स्ट्रांग। अंदर से फीलिंग होनी चाहिए वेल्दी की। सो द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, विल मीट पीपल विल बी डिफरेंट। आप कभी ऐसे झुक के नहीं जाओगे, ना आप घमंड से जाओगे, मगर यू विल वॉक विद एन ओपन आर्म्स,
to as if you are going to embrace anybody. तो उसमें आपकी फीलिंग क्या आती है एंड व्हाट यू गिव द अदर्स, द वाइब्रेशन क्या जाते हैं अबाउट अबंडेंस. और आप और क्या देते हो वाइब्रेशन कि यू हैव गुड अबाउट हिम इन योर हार्ट. You are thinking about his goodness also. For him also, you are thinking of abundance. That type of reaction should be from your side. So that would be humble reaction. No doubt, very positive. You are saying that you are fantastic. आप बहुत wealthy हो, आप abundance में हो. That feeling you are bringing. क्योंकि सर पे नहीं गया है. आप ज्यादा घमंड से बात नहीं करोगे. आप बात करने में आपके एकदम मतलब इतनी सुंदर बात होगी आपकी कि आगे वाला को भी लगेगा कि मेरे लिए भी अच्छा सोच रहे हैं. So when you are happy, you are making others happy, the happiness will flow. और ये फीलिंग हमको चाहिए. हमको पैसे ऐसी फीलिंग चाहिए कि जो भी हम सोचते हैं अच्छा सोचते हैं हमारे लिए और दूसरों के लिए, कि मेरे पास भी पैसा भरपूर है और इसके पास भी भरपूर हो. वो ख्याल से वो मुझे इसी प्रकार का वाइब्रेशन जाना चाहिए. तो एक छोटा सा नेवल गॉर्डन ने लिखा है, कैप्चर द फीलिंग एसोसिएटेड विथ योर रियल लाइफ, wish by assuming the feeling that would be yours where you already in possession of thing you desire and your wish will objectify itself. ये बोलते हैं कैप्चर ऐसी फीलिंग कैप्चर करो which is associated with your real life wish. आपकी एक विश है, आपका एक डिजायर है, उसका एसोसिएटेड एक फीलिंग है. ऐसी फीलिंग कैप्चर करो जिसमें आपको लगे कि वो विश आपकी हो गई है, आपके पास है एंड यू आर डूइंग फैंटास्टिक. आप खुश हो, आपको मिल गया है. इट इज बाय नेवल गोडार्ड, न्यू ऑथर फ्रॉम 1905 to 1972. आई थिंक ये हमने कल पढ़ लिया था, बट एनीवे से यस टू मनी. अच्छा हुआ वापस पढ़ा हमने. यस मैम. Say yes to money. Remember, anytime you hear of another person receiving more money or success, get excited because it means you're on that frequency. It is evident that you are on a good frequency, so be as excited as if it were happening to you. अरे मैडम ये तो पढ़ लिया हमने चैप्टर ना कल, ये तो कल पढ़ लिया है. आई एम सॉरी. आई थिंक यू वर सपोज टू. ओह आई एम वेरी वेरी सॉरी. ये पॉइंट कल भेज दिया एंड हमको ये पढ़ना था, द पावर एंड द रिजल्ट. सॉरी, वेरी 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 सॉरी. कोई बात नहीं पावर एंड द सर, रिजल्ट. हाँ आगे बढ़ जी. या सॉरी सॉरी. The power and relationships extend to each person, no matter how trivial the contact. All the core and kindness and understanding and love that you can muster and do it with no thought of any reward, your life will never be the same again. O.G. Mandino, 1923 to 1996, author. होता है. क्या लिखा है? एक्सटेंड टू ईच पर्सन नो मैटर हाउ ट्रिवियल द कॉज. एकदम जस्ट आपकी पहचान हुई हो, डोंट नो हिम प्रॉपर्ली. You have to extend to that person all the care and kindness and understanding and love that you can muster up, जो इकट्ठा कर सकते, and do it with no thought of any reward. Your life will never be same again. समझो मैं आपसे बात कर रहा हूँ and I'm talking with all the love I have, all the good feeling, all the understanding, जबकि हम कभी मिले नहीं है. So what I'm giving you, I'm passing to you a good thoughts, good feeling, अच्छे वाइब्रेशन दे रहा हूं. तो जनरली वाइब्रेशन आपसे नहीं तो और किसी आएगा वापस. आई गेट. So I don't have to think about reward. Automatically आएगा. Without thinking of reward, I just have to be nice to every person. जैसे बोलते ना, एक बंदा था, वो बहुत मतलब धार्मिक वृत्ति का था और उसके जो दोस्त थे सब मस्ती करते उसकी. तो एक बार उन्होंने एक सबके जूते लिए और एक हार बनाया और इससे ऊपर लगाया जाएगा कि वो जैसे ऐसा एंटर मारेगा वो थोड़ा खुलेगा दरवाजा, उसके ऊपर गिर जाएगा. एंड इट हैपेंड. एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग. तो उसने एक जो श्लोक याद नहीं मेरे को, उसने बोला कि कोई आदमी ज्ञान की छत्रछाया में रहता है, कोई प्रेम की छत्रछाया में, मुझे ये जूतों की छत्रछाया मिली है. हमारे जो भक्त हैं उनके जूतों की छत्रछाया में, तो मैं उनको स्वीकार करता. सो व्हाट इज सो वाज डिवोटीज इन दिस पीपल. तो उनको शर्म आ गई
इट वॉज सच अ नाइस वे टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कि वो आदमी सामने को शर्म आ गई कि मैंने क्या किया. ओके, यस मैडम. Giving love is the law that applies to everything in your life, and giving love in the law of relationships. The force of love doesn't care whether you know someone or not, whether a person is a friend or foe, a loved one or a complete stranger. The force of love doesn't care if you're encountering a work colleague, boss, parent, child, student, or a person serving you in a store. With every single person you come into contact, you're either giving love or you're not. And what you give is what you will receive. Relationships are your biggest channel to give love. And so you can change your entire life just through the love you give in your relationships. At the same time, though, relationships can be your biggest downfall because they are often your biggest excuse for not giving love. और नॉट गिविंग लव. एक मिनट, गिविंग लव इज द लॉ दैट अप्लाई टू एवरीथिंग इन लाइफ. मतलब आपको कोई वस्तु भी चाहिए ना, उसका भी प्यार दीजिए, बड़े प्यार से, बड़े आदर से देखिए. जैसे समझो एक आदमी को एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ये वांट अ BMW, अ पोर्श कार, और उसके अड़ोस पड़ोस ने वो ले ली गाड़ी, तो उसको ही शुड बी वेरी हैप्पी कि उसके पास गाड़ी आई है. ही शुड नॉट फील जेलस. मैं वो हैप्पीनेस विल गेट इन द कार. तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. तो रिलेशनशिप, लव इज द लॉ दैट अप्लाई टू एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड गिविंग लव इज द लॉ ऑफ रिलेशनशिप. जितना प्यार होगा उतना वो उभरेगा आपका, आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप. तो वो चिंता नहीं करता है लव कि कौन है, कैसा आदमी है, क्या है, दुश्मन है, दोस्त है. इट जस्ट गो एंड गेट दैट थिंग बैक. सो whenever you give love, you will get more and more love. It could be anybody. हर इंसान को आप में, आपको हर इंसान में भगवान को देखना है. एंड यू हैव टू बी नाइस. आपको अपना काम करना है, उनका काम भगवान अपने आप करेगा, उनके थ्रू या किसी और के थ्रू आपको भरपूर प्यार मिलेगा. तो रिलेशनशिप आर बिगर चैनल, बिगेस्ट चैनल टू गिव लव. आपको प्यार देना है तो एक बस बड़ा चैनल है जिसके थ्रू आप बहुत सारा प्यार दे सकते हो. एंड उससे क्या होता है ना, आपकी लाइफ बदलेगी, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे हो गए, यू विल स्टार्ट फीलिंग बिगर, यू नो. At the same time, though, result can be your biggest downfall because they are often your biggest excuse for not giving love. कई बार क्या होता है, हम ग्रांटेड लेते हैं. So at the same time, though, reason can be your biggest downfall, और एक downfall होता है, but they are often your biggest excuse for not giving love. घर का ही आदमी है ना, क्या फर्क पड़ता है. So it can become a downfall also. Yes, ma'am. What you give to others, you give to yourself. The most enlightened beings throughout history told us to love others. You were not told to love others just so that you would be a nice person. You were being given to the secret to your life. You were being given the law of attraction. When you love others, you will have an amazing life. When you love others, you will receive the life you deserve. The entire law is summed up in a single command: love your neighbor as yourself. Saint Paul, circa Christian apostle, Galatians. the Christian apostle in Galatians, circa Okay. 6.67. आप circa बोल रहे हैं, circa, sorry, मैं बोला. He was saying circa 5.67, मैं कोई अलग सुना. हाँ Anyway, जी. most enlightened. See, what you give to others, you give to yourself. मतलब वो वापस आएगा आपका. The most enlightened being through history told us to love others. मतलब जो भी भगवान है, कोई जीसस, कोई महावीर, जो भी आप मानो, हर ने वही बोला है, प्यार करिए, प्यार को बांटिए, सबको प्यार दीजिए. You are not told to love others just to that you become nice. एक अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं. ये आपको सीक्रेट दे रहा है कि जो आप करोगे वही आप पाओगे. It's a law of attraction. So when you love others, you will have an amazing life. आप सोचिए ना सर जी, आप सबसे बस प्यार करते हो, कोई आदमी कुछ बुरा हो जाता है, आप उसको
निग्लेक्ट करते हो, आगे बढ़ते हो, इग्नोर करते हो, आप अच्छे बात करते हो। बट व्हेन यू आर हैप्पी, आप अच्छाई में हो, आप सबसे अच्छी बात करते हो, तो एक आदमी कुछ गंदा भी बोला तो आपको फर्क नहीं पड़ता। एक आध आदमी कुछ से गंदे वर्ड बोल दिया, ऐसे गुस्सा कर लिया तो फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर ओवरऑल हैप्पी। बट व्हेन यू आर जी सर। एनॉयड, आदमी अच्छा वर्ड भी बोलता ना, अगर टोन भी खराब करता तो आपको गुस्सा आता। थोड़ा सा टोन भी खराब होगा ना, आपको गुस्सा आता। सो व्हेन यू लव अदर्स, यू विल रिसीव द लाइफ यू डिजर्व, जो आपको चाहिए वो मिलेगा लाइफ। द एंटायर लॉ, पूरा ये लॉ है, इज समड अप इन अ सिंगल कमांड। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ लव। लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। ऐसे प्यार करो जैसे आप अपने आप को कर रहे हो। वो अलग बात है, आजकल अपने आप से प्यार बहुत कम कर जाती, वो भी हमको सिखाना पड़ता है कई बार, थ्रू द मिरर बुक। सर शायद, वी अब्यूज आवरसेल्फ अ लॉट। हाँ हाँ जी। जी, मैं यहाँ बोलना क्या चाहूंगी, शायद हमें अगर ऐसे हमारी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, कोई बुरा बोलता है तो ठीक हाँ, है, इग्नोर करना तो आ गया है, बट कई बार फील होता भी है। बट हम वापस क्योंकि हम इतना विजडम गेन कर रहे हैं इन चीजों से, तो हमें रियलाइज हो जाता है कि फायदा कुछ नहीं है अगर हम ये चीजों के बारे में सोचेंगे। तो वही बात है, आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि हम अभी, हाँ, चलिए आगे समझो, बढ़ने। मैंने आपको कुछ बोला, मैंने आपको एक वर्ड बोला, आपने मुझे बोला, मैंने वापस बोला, आपने बोला, मैंने बोला, इट विल गो ऑन, और आपने छोड़ दिया मुझे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं हार गया। मैं मानूंगा नहीं, पर अंदर से मैं सोचूंगा कि ये लेडी क्या मजबूत है यार, मैं इतना और तो कुछ नहीं बोली सारी कंपनी, एंड आई विल फील गिल्टी, फ्रॉम इनसाइड। एनीवे, यस। लेट्स गो। गिव लव टू अदर्स through kindness, encouragement, support, gratitude, or any good feeling, and it comes back to you and multiplies itself, bringing love to every other area of your life, including your health, money, happiness, and career. Give negativity to others through criticism, anger, impatience, or any bad feeling, and you will receive that negativity guaranteed. And as the negativity comes back, it multiplies itself, attracting more negativity, which affects the rest of your life. रेस्ट ऑफ योर लाइफ। समझो, आपने भी देखा होगा कभी, जब आपको गुस्सा आता है, मैडम, या जब मेरे जी। गुस्सा आता है, मैं किसी बुरे करता हूँ, अभी तो मैंने बुरे करनी बिल्कुल बंद कर दी। धीरे धीरे लगभग, मतलब बिल्कुल बंद हो ही नहीं सकता कोई चीज, पर बहुत कुछ नीचे आ गया, कभी निकल जाता है, वापस रुक जाता है। मगर पहले जब मैं गुस्सा करता ना, वो गुस्सा इतना, मतलब सामने वाला गुस्सा करता है, फिर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इट इज टू मल्टीप्लाई। और अब जब हम लव दे रहे हैं ना, इवन दैट मल्टीप्लाई, Right. प्यार भी मल्टीप्लाई होता है। वी गेट लॉट ऑफ लव फ्रॉम अदर्स। जितना ये मैं क्लासेस कर रहा हूँ ना, इसका इतना मेरा फायदा हो रहा है। तो इतने आदमी लोग क्या क्या मैसेज भेजते हैं, इतना दुआ मिलता है मेरे को दिन में, पूछो मत। पीपल आर सेइंग यू आर डूइंग फ्री, में आई सेड नो, आई एम नॉट डूइंग फ्री। आई गेट लॉट्स ऑफ, मेरी इतनी बहनें बन गई, इतने भाई बन गए। तो आई गॉट इट फ्री ऑफ चार्ज, ऑल दिस। और जब कभी कुछ, जैसे मेरी वाइफ का, उनको फ्रैक्चर हुआ, तो कितने मैसेज है मेरे को, कितने मैसेज है। इट वाज गिविंग सच ए गुड फीलिंग, So this is what happens. The what you give will come back to you, and it will multiply also. तो आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है, आपको वेल्थ कमाना है, आपको रिलेशनशिप बनाना है, हर चीज के लिए यू हैव टू गो ऑन गिविंग लव, काइंडनेस, गुड फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग टू अदर्स, एंड इट विल कम बैक। और वो बहुत भरपूर लेके आएगा, जो मांगता है आपको उसको और ज्यादा मिलेगा आपको। गिव लॉट एंड लॉट टू गिव बैक, यस सर। It's not about the other person. You your relationships right now, what you have been giving. If a current relationship is great, it means that you are giving more love and gratitude than negativity. If a current relationship is difficult or challenging, it means you are inadvertently giving more negativity than love. Some people think a relationship is either good or bad because of the other person. But life doesn't happen that way. You can't say to the force of love, I will give love only when the other person gives it to me. You can't receive anything in life unless you give it first. Whatever you give, you receive. So it's not about the other person at all. It's all about you. It's all about what you are giving and what you are feeling. You can change any relationship right now by looking for the things you love
appreciate, and are grateful for in that person. When you make a deliberate effort to look for the things you love more than you notice negative things, a miracle will take place. It will appear to you as though something incredible has happened to the other person. But it's the force of love that is incredible because it dissolves negativity, including negativity in relationships. All you have to do is harness the force of love by looking for the things you love in the person, and everything will change in the relationship. I know of hundreds of relationships that have been restored through the power of love. But one particular story of a woman who used love's power to restore her crumbling marriage stands out from the others. Because this woman had lost all the love for her husband. In fact, she couldn't bear to be near to him. Her husband complained every day. He was sick all the time. He was depressed and angry and verbally abusive to her and their 4 children. When the women learned about the power of giving love, she decided right away to feel happier despite the problem in her marriage. एक minute, sir. Immediately, the atmosphere in their home became lighter, and the women's relationships with her children got better. She then went through her photo albums. Looking at the photos of her husband when they first married, she took some of the photos and put them on her desk to look at them carefully. And by her doing this, something amazing happened. She felt the love she first felt for her husband, and as she felt the love return, her feelings of love began to increase dramatically inside her. She reached a point where she loved her husband more than she ever had in her life. Her love became so great that her husband's depression and anger disappeared and his health began to return. This woman went from wanting to be as far away as possible from her husband to a marriage where they want to be with each other as much as possible. As much as possible. It's a beautiful story है. And it's a fact ना सरकार जी, आप समझो आपके घर पे एक आदमी हमेशा चिड़चिड़ रहता है, नाराज है, वो सबको दुखी करता है. जी तो ये है ना, एक गंदी आदत है, नेगेटिविटी जल्दी फैलती. पॉजिटिव चीज को है ना, हमको उसको उगाना पड़ता है. जैसे हमको है ना, एक प्लेन लैंड है, उसमें वीड्स उग जाते हैं, हार्मफुल. अगर हमको पौधे लगाने पड़ते हैं, हमको सब्जियां लगानी पड़ती है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. हमको इसी तरह हमारे लाइफ में भी हमको कोई अच्छी चीज है ना, उसको हमको उगाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, जुस्तजू करनी पड़ती है, हमको पानी डालना पड़ता है, सनशाइन देना पड़ता है. जी तो सर ये जो रिलेशनशिप है, इट विल ओनली कम थ्रू लव एंड ग्रेटिट्यूड. एंड हाउ विल यू गेट दिस टू ग्रेटिट्यूड? ये जो बोलते हैं ना, हम लोग बार बार बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, उसको हम कहाँ से लाए? यू टू बी हेल्प, मतलब यू हैव टू बी फीलिंग सो नाइस अबाउट वॉट एवर यू हैव. आपका इस काम है तो कम, हम बोलते हैं हमारे पास इतना होना चाहिए था, इतना ही है, जितना है उसके लिए प्यार लाइए. तो फर्स्ट एंड फॉरमेट आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा. टू लव अदर्स, पहले अपना कप तो भरो. चाय देनी किसी को, उसमें चाय तो भरनी पड़ेगी ना, चाय लाएंगे कहां से? आपको चाय बनानी पड़ेगी. Same way for love, you have to prepare that love. Where it will be, where you will prepare it, where you will manifest the love from yourself, from within yourself. आप पहले अपने आप से प्यार. Forgive yourself. Give away all the guilt feeling. सबसे पहले आपको हम बोलते हैं ना, किसी से झगड़ा हुआ उसको फॉरगिव करो, तो पब्लिक ना बड़ा उल्टा मतलब दे देते हैं कि माफ कर दो उसको, जो करना करना. नहीं, उसके ऊपर जो कंप्लेन करनी कंप्लेन करो, और उसको माफ करो, मतलब अपने आप को माफ करो. बार बार उसको याद करके अपने आप को दुखी मत करो. यस सर जिससे भी झगड़ा हुआ है उसके ऊपर एक्शन लेना है. पुलिस कंप्लेन करो, कोर्ट में जाओ, जो भी किया, फिर शांति से बैठ जाओ एंड थिंक अबाउट दैट कोर्ट मैटर ओनली, नॉट अबाउट दैट पर्सन व्हाट ही डिड व्हाट ही वाज हियर टू डू. तो जो करना उसका कर्म, तो जो करना उसने किया. अब हम अपना बचाव करने के लिए हमको क्या ध्यान देना है? खाली कोर्ट पे. तो बार बार उसको याद करके दुखी होके
हम कोर्ट में भी हार जाएंगे, बिकॉज हमारा दिमाग चलेगा नहीं। तो इट इज बेटर दैट वी जस्ट फॉरगिव हिम, मतलब अपने अंदर से वो घृण भावना को निकाल दे। थोड़ा बदमाश है, वैसा है, हम लोग कुत्ता कमीना बोलते, हम लोग जो बोलते, तो सब कुछ बंद कर देना है। कि जितना हम गुस्सा करेंगे उतना उसको मजा आता है। ही वॉन्ट्स दैट, वो तो तकलीफ इसलिए देना चाहता है आपको कि आपको दुखी करे, और आप दुखी हो ही नहीं रहे हो। उसने चप्पल का हार पहना दिया तो बोलते हैं आप तो डिवोटी, जो आपका हार मेरे को मंजूर है। तो सामने वाला शर्म आ गया। तो कुछ भी चाहिए आपको, कुछ भी पाना है तो पहले देना सीखो। तो स्टार्ट फॉरगिविंग दिस टाइप ऑफ पीपल। इसको मतलब अंदर से निकाल दो, एंड जस्ट बिल्ड गुड रिलेशनशिप। जितने अच्छे रिलेशनशिप आपको याद रहेंगे, उतनी आपकी भावना अच्छी होगी, इतने आप खुश रहोगे। जितने आप खुश रहोगे उतने अच्छे रिलेशनशिप और बनेंगे। व्हेन यू गो आउट, योर ऑरा टॉक्स। आप जब चलते हो ना, आपका ऑरा से मालूम पड़ता है कि ये लेडी बड़ी मस्त है, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज नाइस वन। और एक दिखते इसका चेहरा देख के मालूम पड़ता है ये बहुत मतलब खड़ूस है। वी मेक दिस ऑलवेज। एक आदमी है और जो भी है। तो यू कैन चेंज एनर्जी राइट नाउ बाय लुकिंग फॉर द थिंग्स यू लव। हर एक में क्या आप अप्रिशिएट करते हो, क्या चीज को प्यार करते हो, हर एक में ढूंढिए। आपको हर एक में कुछ ना कुछ मिलेगा। हम ये एफर्ट करेंगे ना, हमको जरूर मिलेगा। वी हैव टू फाइंड द वे। कभी भी झूठी तारीफ नहीं करना सारी का। कभी किसी तारीफ करनी है ना, उसमें ढूंढिए क्या अच्छा है, कुछ तो मिलेगा आपको, और उसी की तारीफ करो। जब तो लगेगा मस्का मारा है। और जितनी आप सर तारीफ करो उतना वो उसका नेगेटिविटी कम होगा आपके लिए, जो हो तो। और इसीलिए इन्होंने एक स्टोरी बताई है कि वो वाइफ किसे, वो जब उसका समझ में आता है यू टू बी हैप्पी, यू टू गिव लव, तो आपको लव मिलेगा। शी स्टार्ट डूइंग दैट। इतना खराब रिलेशन था कि दोनों के बीच में डाइवोर्स होने वाला था, फिर भी शी स्टार्ट थिंकिंग गुड अबाउट ऑल, शी स्टार्ट बीइंग हैप्पी। जैसे करते करते उसके बच्चों से रिलेशन अच्छे बन गए। देख के नियर हर, उसका हस्बैंड जो डिप्रेशन में था वो बाहर निकला। आप सोचिए आपके घर पे ऐसा कोई हो, भगवान करती हो एक बार, और आप उसको प्यार देंगे तो डिप्रेशन निकलने वाला है ना। डिप्रेशन है क्या? वेन अ पर्सन फील इग्नोर्ड बाय एवरीबॉडी, ही गो इन डिप्रेशन। किसी को लगता है कि मेरा बहुत कर्जा हो गया तो जाता डिप्रेशन की। इट इज लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ लव, देयर इज सम लैक। पर आपका पैसा नहीं है, किसी को बहुत कर्जा आ गया, समझो मेरे बहुत कर्जा आ गया, मगर मेरी वाइफ का पूरा सपोर्ट है, तो उससे भी निकल जाऊंगा मैं, मुझे डिप्रेशन नहीं आएगा, बट आई विल कम आउट। So it was all about that lady giving love in home, brought that husband out of it. रिलेशनशिप बच गए, उनका मैरिज बच गया, बच्चे खुश रहे। तो आप सोचिए कितनी ताकत है ये लव में। कहां से कहां ले जाता है आदमी को, और कितना फायदा हो जाता है। तो सर इसको यहाँ लाने के लिए पहले, हाँ बोलिए। यहाँ पर एक चीज मैंने पूछनी थी। जैसे क्या होता है हाँ ना सर, कई हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, हाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, हम दिल से बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए हाँ। हम बहुत एफर्ट करते हैं। लेकिन कई यस। रिलेशन हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी कई बार खराब हो जाते हैं, और शायद आपने उनके लिए पता नहीं बोला होगा या नहीं बोला होगा, बट वो रिलेशनशिप आज के टाइम पे अगर ठीक नहीं है, हाँ उनके लिए सर हमें बैड वर्ड्स बोलना तो बंद हो गए। जैसे मेरे साथ अगर कुछ चल रहा है तो उनके लिए अब मैं कुछ भी बैड वर्ड्स नहीं यूज करती, क्योंकि पता है हाँ। हम स्ट्रक्ट में हैं। बट सर प्यार देना अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि वही है सर, अगर एक इंसान में अगर 10 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हम्म। जैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो उसके मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखे, बहुत कुछ लिखा। बट क्या है ना, फिर भी जैसे कई बार ये सुनने को मिलता है कि हाँ। बहुत दहेज चल रहा है उसके मन में हमारे प्रति। तो सर उसके लिए क्या करें, कितना प्यार दे सकते हैं? और कई बार क्या लगता है ना कि हम हाँ। शायद उसको नहीं दे रहे हैं, हम शायद वो वाली एनर्जी कहीं और लगाएं तो ज्यादा बेटर है, कि हम उसी में ही एनर्जी दिए जा रहे हैं एक ही इंसान को। शायद वो ठीक टाइम होने पर, अपना टाइम आने पर ही ठीक होगा। तो सर उस सिचुएशन में क्या करें? देखिए देयर आर पीपल हु आर टोटली नेगेटिव, तरीका जी। यस उनको सर। आप उससे लंबा रहने का। एक आदमी तो ऐसा नेगेटिव होता है, वो सबके लिए बुरा ही सोचता है। जी। जब फैमिली है उसमें, फैमिली जहां पर फैमिली है, यू कैन नॉट इग्नोर कि वो हमेशा हंसते रहते हैं। दैट्स द डिफरेंस। इन जनरल देयर आर पीपल हु आर ऑलवेज नेगेटिव। तो उससे आप दूरी बनाइए। यस सर, आप उससे एग्जैक्ट आप भी खींच जाओ, तो आप भी खींच जाओगे। एग्जैक्टली यही पूछना था सर मैंने। हाँ, उससे दूरी बनाइए। जितना काम पड़े उतना ही बात करिए।
और जी। एक बात याद रखना सारिका, वो कुत्ते कुछ बोले आप अपने काम से काम मत करो, वो कितना बोलेगा, लिमिट है ना। आप जी। उसकी दूरी बनने के लिए एंड गो नियर टू पीपल हु आर लविंग, जिसको जो प्यार करते हैं, ऐसे आदमी के साथ ज्यादा संबंध बनाइए, अपना हो जाएगा। Right, You sir. Right. Right. cannot do it. You cannot change anybody. आप ये रखना तरीका, you just can't change anybody except yourself. आपको Exactly, जो sir. भी चेंज देखना है वर्ल्ड में, you have to change yourself for that. आपको प्यार चाहिए तो आप खुद प्यार बन जाइए, be a idol of love. आपको ग्रेटिट्यूड बी आइडल ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो भी चाहिए आपको बनना पड़ेगा, जी। बराबर Thank you, ना। sir. और ऐसे लोगों से लंबा रखिए बस, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप बोलो नहीं मुझे प्यार करो ना, वो नहीं होगा। वो आदमी के दिल में इतनी नफरत भरी, उसका रीजन हो सकता है कुछ भी, Hmm. उसका कोई लेक है उसके लाइफ में, इज लेकिंग समथिंग, उसके लिए होगा। जो भी है सॉल्व तो उसको ही करना पड़ेगा, यू कैनॉट सॉल्व Right, sir. Right. उसका, Right. और कैसे बस। यस मैम, लेट्स गो। Thank you so much. Yes. थैंक यू मैम। आगे बढ़। यस यस। Love means freedom. Now here is the tricky bit with giving love in relationships. And it's the one thing that has prevented many from receiving the life they deserve. It's only tricky because people have misunderstood what it means to give love to others. To be very clear about what it means to give love to others, you need to understand what it means not to give love to others. Trying to change another person is not giving love. Thinking you know what is the best for another person is not giving love. Thinking you're right and another person is wrong is not giving love. Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding faults with another person is not giving love. Hate is not conquered by hate. Hate is conquered by love. This is a law eternal. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. I want to share. लव मीन्स फ्रीडम, आजादी। ये जरा ट्रिकी बिट है। नाउ देयर इज हियर इज अ ट्रिकी बिट विथ गिविंग लव इन रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप में प्यार दे रहे हो, and it's the one thing that has prevented many from receiving life they deserve। क्या बोलते हैं? And it is one thing that has prevented many from receiving the life they deserve। It's only tricky because people have misunderstood what it means to give love to others। To understand that, you have to understand what is not giving love। So trying to change another person is not giving love। Thinking to what is best for another person, thinking you are right, ये सारी चीजें क्रिटिसिज्म है, ये इज इज नॉट गिविंग लव। जैसे आपने अभी बोला, कोई आदमी मतलब ऐसा है कि वो आपसे रिलेशन रखना ही चाहता नहीं है, तो आप उससे लंबा जाइए, उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसका गंदा मत करो, उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। जस्ट मेक हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम, डोंट इवन इग्नोर हिम। खाली हाई लो रखने का, लंबा रहने का, काम से काम बात करने का। बट इवन यू स्टार्ट थिंकिंग यू विल चेंज दैट पर्सन, आप उसको बदलने की कोशिश करोगे, यू ट्राई टू फाइंड टेल अदर्स इसको ये करना चाहिए, वो सब काम करता है। दैट इज नॉट गिविंग लव। तो लविंग डजंट मीन गो एंड लव हिम, अरे यार क्या मस्त आदमी, तो क्या चाहिए, नहीं। कभी कभी डिस्टेंस मेंटेन करना भी लव है। इंस्टेड ऑफ गोइंग इन कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, ट्राइंग टू चेंज हिम, ऑल दिस थिंग को छोड़ के हम उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर ले, देन नॉट इट इज अ लव। क्योंकि आपने खराब तो नहीं किया ना, Yes, sir. आपने कुछ खराब तो नहीं किया उसका। आपके मन में भावना चाहिए ना कि भाई इसको छोड़ दो, वो दुखी है, तो आपकी भावना क्लियर है, इट्स अ प्योर। सो हेट इज नॉट कॉन्कर्ड बाय हेट, हेट से इज नॉट कॉन्कर्ड बाय हेट, हेट इज कॉन्कर्ड बाय लव। दिस इज लॉ इटर्नल। ठीक है, एक गौतम बंदा बोले ये बात है, पर उसको समझने के लिए आपको लव क्या है। आपको तकलीफ है किसी से, कोई आदमी से, आप अरे किसी को आपको तकलीफ है, उससे दूरी बनाइए, बाकी लोग से अच्छे से बात करिए, बट नेवर ट्राई टू चेंज एनीबॉडी। उनके थॉट को चेंज करना है, उसके उसको क्रिटिसाइज करना है, कुछ मत करिएगा। ओके, दैट इज इनफ फॉर बीइंग इन लव, राइट मैन? यस मैन। Yes. I want to share a story I received that demonstrates the care we must take in our relationships. A man's wife
had left him and had taken their children with her. The man was devastated, blamed his wife, and he refused to accept her decision. He continued to contact her, determined to do everything he could do to change her mind. He may have thought he was acting out of love for his wife and family, but his actions were not loving. He blamed his wife for their marriage ending. He believed that she was wrong and he was right. He refused to accept his wife's decisions to choose for herself because he would not stop contacting his wife. He was arrested and sentenced to jail. The man eventually realized that he was not giving love when he denied his freedom with her to choose what she wanted, and that he lost his freedom as a result. The law of attraction is the law of love. You cannot break it. If you violate it, you break yourself. I'm sharing this story because the ending of intimate relationships is very challenging for some people. You cannot deny someone else's right to choose what they want because that is not giving love. It is a bitter pill to swallow when your heart is breaking. But you must respect everyone's freedom and right to choose. What you give to another person, you will receive yourself. And when you deny another person's freedom to choose, you will attract negative things and deny your own freedom. Maybe the flow of money to you decreases, or your health weakens, or your job takes a downturn, because all of these things would affect your freedom. There is no other person for the law of attraction. What you give out to others, you give to Sorry. yourself. Giving love to other people does not mean you let people walk all over you or abuse you in any way, because that's not giving love either. Allowing another person to use you doesn't help that person, and it surely doesn't help you. Love is tough, and we learn and grow through its law. And as part of that learning, we experience consequences. So it is not love to allow another person to use or abuse you. The answer is get yourself onto the highest frequency of good feelings that you can, and the force of love will Force of resolve love, for the you. teacher for you. Sarika ji, सबसे बड़ी बात क्या है ना, when you are trying to give love or being loving, सबसे बड़ी बात है you have to be very strong. You cannot let abuse anybody. जो हमारे यहाँ बहुत बार लेडीज लोग इस बात को नहीं समझते, वो बोलते हैं हस्बैंड है, समझ जाएगा. You will never understand. वो आदमी और बिगड़ेगा. जितनी आप छूट दोगे उतना वो बिगड़ेगा. So don't give freedom to cross that boundary. आपको अपनी बाउंड्री खुद बनाना है. आप जब उसको बाउंड्री क्रॉस कर दे तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो. तो यहाँ पर वो स्टोरी शेयर कर रही है, मैन एंड वाइफ, मतलब वो औरत, उनका झगड़ा हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, जो भी होता है. शी टेक्स अवे द चिल्ड्रन, और वो उस हस्बैंड को जम नहीं रहा है, और वो समझता है मैं कितना प्यार करता हूँ, मतलब मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, बार बार फोन करेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोता है, कुछ भी करता है. तो उसको कंप्लेन करनी पड़ती है, उसको अरेस्ट कराना पड़ता है. देन ही अंडरस्टैंड दैट वाज नॉट गिविंग लव, इट वाज अ सेल्फिशनेस. कई बार आप मार्क करना सारिका मैडम, देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट, और मोस्टली ये हमारे आदमी में ज्यादा होता है. सॉरी टू से दैट, होता है. वो गिड़गिड़ा के पहले पटाता है लेडी को, और फिर वापस जैसा है वैसा ही बन जाता है. एंड लेडीज आर सो स्टूपिड, आई एम सॉरी टू से दैट, वो माफ कर देती है विदाउट इवन गिविंग टाइम. कि भाई तो कम से 2 महीना दिखा तो सही अच्छा बन के, 3 महीना तो दिखा, 2 दिन में माफ, अरे 1 घंटे माफ कर दे. So that is where you also default. I'm sorry to say that, Sarika ji, don't mind my saying, ये होता है कई बार. Yes, sir. क्यों? आप लोग है ना मोम की बनी हुई है. लेडीज आर वेरी स्ट्रांग. नहीं हाथ से नहीं, ऐसा नहीं कि बल से, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैविंग 6 पैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन. आप जो सेवा करते हो, जो प्यार है, वो कौन देता है?
आज आदमी जो बोलता है माफ करो, माफ कौन कर सकता है? जो आदमी स्ट्रांग है दिमाग, जो अंदर से स्ट्रांग है, नॉट ओनली दिमाग। अब आप लोग माफ कर सकते हो, आप लोग प्यार देते हो, मतलब एकदम अंधा प्यार देते हो। आप बच्चे को जो प्यार देते हो, हम लोग दे ही नहीं पाते। इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, हैविंग मदर इन माय लाइफ, सच द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है। Yes, sir. हमारे सारे भगवान को हमने दिखाया कि वो मेल है, आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज, पर भगवान में सब है, वो फीमेल और मेल दोनों है। वो प्यार भी दे सकते हैं, आँख की तरफ प्यार भी दे सकते हैं। मतलब हमारी माँ इसलिए बनाई है उन्होंने, तो ही कैन नॉट रीच एवरीबॉडी, तो बोलते हैं माँ को बना दिया ताकि वो उसका काम करे भगवान। तो एक औरत को भी समझिए कि जहां पे उसको स्ट्रांग होना होगा, स्ट्रांग होना ही है। फिर वो आदमी चापलूसी करे, मस्का मारे और आप पिघल जाओ, तो आपकी भी इतनी फॉल्ट है। तो इफ यू रियली वांट टू लव समबडी, आपको अपनी बाउंड्री पहले बनानी है। डोंट लेट एनीबडी, इवन योर सन, क्रॉस द बाउंड्री। और मैंने देखा है कई बार, लड़कियां नहीं, लड़के बाउंड्री क्रॉस नहीं। आपका बेटा करेगा, आपकी बेटी नहीं करेगी। फिर बेटी को गुस्सा आता है, फिर वो भी थोड़ा बोलने लगती है। व्हाई डू यू अलाउ दैट? Not, I'm not talking. I'm not telling you, Sarika. I'm talking in Ye- general. I've Yes, sir. seen many ladies do this. और बच्चे क्या होते हैं, मुस्का मारेंगे मारेंगे, माँ को पटा देते हैं। Very true, sir. और सबसे बड़ी बात है, जिस बच्चे ने माँ को घर से निकाल दिया है, वृद्धाश्रम डाला, उधर भी माँ ने उसको आशीर्वाद ही दिया है। एक गजब की बात है, अच्छी बुरी बात नहीं करूंगा मैं, पर एक गजब बात है। इतनी इतना प्यार करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। वो सिर्फ आप लेडीज में ही हो सकती है, और आपको भगवान ने उसी लिए बनाया है। पर उसका भी किसी को फायदा मत लेते। Don't let anybody abuse you by teasing you or by overriding you. आपको वो डिस्टेंस मेंटेन करना है। जहां भी रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, आप डिस्टेंस मेंटेन करो, उसके क्रिटिसाइज मत करो, उसको गंदा मत बोलो, भला बुरा मत बोलो, गंदा सोचो मत उसके लिए अच्छा सोचो। जिसने मेरे को धोखा दिया, मैं उसके लिए भी सोचता हूँ इसका भी भगवान भला करे। क्यों बोलो मैं, कि जब उसका भला होगा तो मेरे बारे में खराब नहीं सोचेगा, मेरा अपना भला हो जाएगा। आई नो इट इज Yes. सेल्फिश मोटिव, बट समटाइम सेल्फिश इज गुड। कौन सा सेल्फिश इज गुड? जिसमें आप सबका भला सोचते हो। जब मैं आता हूँ कोचिंग करने को, एंड आई थिंक जो भी आए सब जुड़े, मैं बार बार बोलता हूँ, आते नहीं आते चलता है, फिर भी आई डोंट गेट एनॉयड, बट आई ट्राई टू पुल देम, यू नो व्हाई? जस्ट विद द फीलिंग कि सब लोग आए, सब लोग सीखे जो मैंने सीखा है। यू नो व्हाई आई वांट टू टीच? ताकि मेरी जो सीखा मन है, जो मैंने सीखा है, वो कायम रहे। आई एम नॉट डूइंग फॉर यू सारिका, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। Yes, sir. मगर मैं कर क्या रहा हूँ? सबके लिए भला कर रहा हूँ। इट इज सेल्फिश मोटिव, बट वो सेल्फिश एक ऐसा है जिसमें सबका भला होता है। इट्स अ विन विन। ओके, G. तो आई एम शेयरिंग द स्टोरी, बोल रही है, because the ending of intimate relationship is very challenging for some people. नहीं सहन कर सकता। You cannot deny someone else right to choose what they want. If a lady want to divorce or a gent want to divorce, male want to divorce, उसका choice है। You cannot say you can't do it. आपको accept तो करना ही पड़ेगा। It's a bitter pill to swallow, but you have to accept it. You cannot go against that. And this is a freedom. When you accept something, that is a freedom. किसी को आप कुछ भी करने दो, बोलने दो, वो फ्रीडम नहीं है। वेन यू एक्सेप्ट, भाई ये इतना ही है। आपको इतनी मेच्योरिटी हमारे में होनी चाहिए कि हम जो चेंज कर सकते हैं उसको चेंज कर रहे हैं, जो चेंज नहीं करने लायक है उसको एक्सेप्ट करने में हमको सीखना पड़ेगा। एंड दैट्स द रियल मेच्योरिटी। ओके, तो लव देना मतलब क्या है? डोंट लेट एनीबडी एब्यूज यू, डोंट लेट एनीबडी टेक बेनिफिट ऑफ यू, अननेसेसरी बेनिफिट। और खासकर मैं लेडीज को बोलता हूँ, प्लीज 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 डोंट माइंड, आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द लेडीज। नॉट, आप में जो ताकत है वो नहीं है हमारे में, मैं मानता हूँ। और आप जो छोटा छोटा काम कर सकते हो ना, वो हम लोग नहीं कर सकते इतनी खूबसूरती से आप कर सकते हो। आप लोग घर पे भोजन बनाते हो, उसमें भी जो प्यार डालते हो आप, वो भी एक गजब की चीज है। तो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट डोंट लेट योर सन ऑल्सो ओवरराइड यू। डोंट लेट देम क्रॉस द बाउंड्री। ये नहीं किया आज तक तो अभी करो, धीरे धीरे, एक साथ में मत करना। कोई भी काम करना है, कोई भी बदलाव लाना है, इट हैज टू बी वेरी स्लो, लाइक इन काइजन। जापान में मतलब काइजन। काइजन मतलब क्या है? रोज थोड़ा 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 बदलाव लाओ, अपना पूरा बदल जाएगा। आप एकदम Yes. सबको रोकोगे नहीं होगा। आपने अलाउ किया है तो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। यस, एक मिनट ये मैं पढ़ लेता हूँ। वेन एवर एनी वन हैज ऑफर्ड मी,
I try to raise my soul so high that offense cannot reach it. Whenever anyone is offended, किसी ने मेरे को ऑफेंड किया है, मैं अपने आप को इतना हाई कर देता हूँ कि वो ऑफेंस मेरे तक पहुंचे ही नहीं. ये बोलते हैं रेमी डिस्क्राइब्स मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ऑफ 1596 to 1650. ये बुद्ध भगवान का था. एक आदमी बहुत गंदा उसको बोलता है, एंड ही इज जस्ट स्माइलिंग एंड लिसनिंग एंड ही वॉक्स अवे. आगे बढ़ते हैं. तो जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव. उनका डिसिपल बोलता है कि इतना गंदा बोला आपको, आप पे इतनी ताकत है, तो आपके इतने फॉलोअर्स है, आपने क्यों सुन के लिया? बोलता मैंने कहा लिया. ही ट्राइड टू गिव मी, आई डिडंट टेक इट, आई डिडंट रिसीव इट. तो कहाँ रहा? बोलता उसके पास रहा, तो बस एनी मूव्स ऑन. तो आपको ऐसे बनना है. कोई आदमी कुछ भी बोले, डोंट टेक इट. व्हेन यू गेट एनॉयड, आपने ले लिया. हालांकि मेरा भी होता है, मेरा बेटा कभी बोलता है, मेरे को गुस्सा आता है. अब मैंने बहुत कम किया है, क्योंकि मैं गुस्सा करता हूँ मतलब मैंने उसका बात को लिया. इफ आई डोंट गेट ऑफेंडेड, he will understand कि पापा अभी ऑफेंड हो रहे हैं. नाउ अभी he started changing now. पहले मेरे में था, अभी भी पूरा बदलाव नहीं आया है. अभी भी गुस्सा आ जाता है, मगर अभी मैं रुक जाता हूँ. थोड़ा होता है फिर रुक जाता हूँ. आई अंडरस्टैंड कि मेरा लिमिट आ गया. ओके, यस वेल, दैट्स गुड. हेलो एक सेकंड सर. आगे. हेलो हाँ, सर, गुड यस मॉर्निंग यस. सर. एक्चुअली मेरा भी एक क्वेश्चन है. हाँ, अभी आपने जो रीड किया ना कि रेज योर फ्रीक्वेंसी कौन व्हेन कौन कौन समबडी कौन बोल रहे हैं? रवीना. रवीना, रवीना, यस यस. हाँ सर, टू रेज योर फ्रीक्वेंसी, यू हैव सेड कि हाँ, रेज योर फ्रीक्वेंसी इफ समबडी हैज ऑफेंडेड यू. अभी ये कोई नेबर वगैरह या कोई फ्रेंड होगा तो ठीक है, हम वो ये कर सकते हैं. बट इफ इट इज इन द फैमिली या हमारे बहुत बच्चे तकलीफ है. हैं या हाँ, समबडी, तो फिर हम कैसे रेज करें फ्रीक्वेंसी को? उसको आप सुन लो. आपका बेटा कुछ बोलता है, हाँ जैसे मैंने बोला मेरा बेटा, तो मैं डिस्टर्ब होता था. अब मैंने डिस्टर्ब होना बंद कर दिया. नाउ आई डोंट गेट डिस्टर्ब. और मैं समझ गया हूँ कि ये बोलते हैं क्योंकि बच्चे लोग है ना, आपको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं. आप माँ करना, आपको उत्साहित करने के लिए बोलते हैं. दे हाँ. ट्राई टू ब्लैकमेल यू. राइट. तो आपको ब्लैक होना नहीं है, आपको शांत बैठना है. क्या बोलेगा ना, 10 बार बोलेगा, हाँ. आप हाँ. कुछ रिएक्ट नहीं करोगे. वेन यू डोंट रिएक्ट, यू आर रिस्पॉन्डिंग. हाँ. आप स्माइल लेके बात करोगे, नहीं यू आर राइट, बट नहीं होगा. जैसे एक छोटा बच्चा आपसे मोबाइल मांगता है. राइट. मौन में बहुत पावर है यार. मैडम बोलती है मौन रहने का. एक छोटा बच्चा आपसे मोबाइल मांगता है, आप क्या करती हो? उससे आप झगड़ा नहीं करते हो? नहीं बेटा, नहीं मिलेगा. यू बी वेरी राइट. स्ट्रिक्ट. नहीं, दिस इज वन बियॉन्ड. आपको क्या चाहिए और कुछ चाहिए ले लो. हम्म. इसी तरह हम बड़े बच्चों के साथ कर सकते हैं, हम करते नहीं है. राइट. और खास करके आपके हस्बैंड समझो है, राइट. आई डोंट नो यू आर मैरिड नॉट, ऐसे बात कर रहा हूँ, एक लेडीज का हस्बैंड है, यस यस. वहां पर वो खास चीज हो जाती है. अब मैं क्या करूं? अबला मत बनिए. आप लोग बहुत ब्रेव हो, लेडीज आर वेरी पावरफुल. अबलापन मत लाइए ऊपर प्लीज. अबला बोलने वाले, अबला वर्ड ही नहीं था. लेडीज तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, देविया तो सब लेडीज है. सो बी स्ट्रॉन्ग. हस्बैंड लेकिन को भी फिर बोलना पड़ेगा. ऐसे टाइम पे क्या होता है, पूरी फैमिली हमारी दुश्मन बन जाती है. इफ यू आर इवन फाइटिंग फॉर द नहीं, राइट थिंग और नो मैडम, नहीं होगा. जो फैमिली में अक्ल नहीं है, जो आदमी मतलब जहां पर फैमिली ऐसी है कि जानबूझ के करती है, वो अलग बात है. कोई फैमिली ऐसी होती है सताने के लिए करते हाँ. हैं, तो आपको हाँ. डिसीजन लेना पड़ेगा. तो आपको कोई अलग ही डिसीजन लेना पड़ेगा. व्हेन द होल फैमिली इज अगेंस्ट यू, यू हैव टू हाँ. अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो आपका ओके. अलग डिसीजन होगा. वो डिसीजन आपको बहुत सोच के लेना है. जैसे अभी अभी एक हुई थी लड़की का, वो मेरे को बोलते ऐसा है, मेरे ससुर ये करते हैं, मेरे वो करते हैं, मेरा हस्बैंड कुछ बोलता नहीं है, इज वेरी हम्म. लविंग, इज वेरी नाइस. पहला काय का नाइस? जब तेरा ससुर बोलता है और वो कुछ नहीं बोलता है, वो डरपोक है. यस. एंड दिस राइट. मीन दैट, हाँ, इसका मतलब है कि वो उसको मानता है ससुर का बात. तो बोलता था ना. तो यू टू अंडरस्टैंड कि आपको ये रिलेशन खराब हो गया, आपको अभी से एक्शन लेना पड़ेगा. कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए और आपके ऊपर आरोप लगा दे. शी डिड लिसन टू मी. मतलब मैं ऊपर रहते हुए, नीचे रहते हुए, अलग खाना बनाते हुए, आई एम हैप्पी. बोला ऐसा नहीं है. एक दो बार बोला, ज्यादा बोला अच्छा नहीं मेरा. आई वाज आस्किंग हर क्वेश्चन एंड शी वाज सेइंग यस, पर नहीं मेरा हस्बैंड अच्छा है. एंड द डे केम व्हेन शी वाज लॉक्ड इन द रूम. अच्छा हुआ हाँ. उसका मोबाइल था, उसने पुलिस को बुलाया एंड शी वाज फ्री. घर ओह. पे गई, अपने घर पे गई, फिर उन्होंने बहुत सारा इल्जाम लगाया. आई मैनेज टू हेल्प हर थ्रू सम ऑफ माय फ्रेंड्स, इसी ग्रुप के. और हाँ. नाउ शी इज अगेन बैक विद द फैमिली एंड दे आर नाउ बिहेविंग प्रॉपर्ली. पर जब अच्छा. तक एक्शन नहीं लिया, सबने मस्ती किया उसके.
कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा, कभी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप में बुद्धि है, नहीं तो राइट यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो सी, ये सब नाजुक बातें हैं, इसको बड़ा संभल। कभी आदमी डाइवोर्स लेता है, डिवोर्स क्यों लेता है? एक तो आदमी घमंड में लेता है, समझो आप रवीना, राइट आप है, आप कमा रहे हो, मतलब मैं तो ऐसा क्यों बोला मेरा हस्बैंड, 2 वर्ड के लिए आपने उसको डिवोर्स दे दिया। एक औरत है बहुत सहन करने का, उसको मारता भी है तो भी डिवोर्स करती है, वो बेवकूफ है ना। देखो, राइट एक दो तीन खराब शब्द के लिए डिवोर्स लेना, या कुछ थोड़ा बहुत मतलब झगड़ा हो गया डिवोर्स लेना, वो भी गलत है। और बहुत सहन करने के बाद भी नहीं लेना डिवोर्स, वो भी गलत है। तो ये बड़े नाजुक रिलेशनशिप है, आपको बड़ा सोच के संभलना पड़ेगा। पहले यू ट्राई एवरीथिंग दैट यू कैन फ्रॉम योर साइड, बी स्ट्रिक्ट देम, उनको बोलो नहीं मतलब नहीं। सी, नो हैज टू बी नो, रवीना, खास रखना राइट लेडीज ले लोग के लिए। व्हेन यू से नो, इट हैज टू बी नो। फिर वो मस्ती मजाक में हाँ, हाँ करके नहीं, मैंने ना बोला ना, खत्म। तो इसी तरह से स्ट्रिक्ट बनेंगे आप, वो रियल प्यार है। जैसे मेरी मदर, मेरे को, आई एम हैंडीकैप पर्सन, आई एम स्पेशली एबल्ड पर्सन, मेरे पैर में पोलियो हुआ था, तो मेरे को एक पूरा कैलिपर पहनना पड़ता बूट, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, कमर तक मेरा एक बूट रहता है, ओ जिससे मेरा उसमें बेल्ट रहते हैं, तो मेरा घुट्टा ये रहता है, तो मेरा घुट्टा बेंड हो जाता है, देन ओनली आई कैन वॉक। शी वाज सो स्ट्रिक्ट कि मुझे बचपन में, अभी 6 महीने का था, मेरा पोलियो होता है, मुझे क्या मालूम ना, मस्ती मजाक करते थे, तो मैं नहीं पहनता बूट, बूट तो पहनना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो बूट तो। उससे क्या हुआ, मेरे पैर स्ट्रेट रहे, और किस लोग जिसके माँ ने और ज्यादा प्यार किया, they didn't understand when to stop, उनके पैर बेंड हो गए, they now cannot wear the caliper also, and today ओ at the age of 60 I'm wearing caliper, I go everywhere, मेरे 8-10 राइट सीढ़ियां चढ़े चढ़ सकता हूँ। when people look at me they feel so pity for me, मतलब don't worry, I'm fine, I don't like pity, I don't pity, मैं बहुत मजबूत हूँ। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि बैसाखी से चलना कोई पाप नहीं है, पर चलना आना चाहिए, चलना आप ही को पड़ेगा। ओके, तो आपके घर पे क्या है उसको आप बड़े शांति से सोचिए, कहीं पर आपको लेना पड़ेगा, ओके मैम, ज्योति, थैंक यू, आपको शांति से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रवीना, एंड बी राइट स्ट्रिक्ट समवेयर। नो मतलब नो, बस ये याद रखो खास। हमको क्या है, हम नो को यस कर लेते हैं यार, बहुत जल्दी। राइट तो थोड़ा आप करिए, हो जाएगा, लगभग बांधना नहीं आएगा, नहीं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कुछ। ओके, राइट यस मैम, लेट्स गो अहेड टू रिलेशनशिप। The secret to relationships. Life presents everything to you so that you can choose what you love. And part of the gift of life is that you are given all kinds of people so you can choose what you love in those people and turn away from what you don't love. You are not meant to manufacture love for qualities in a person you don't love, but simply to turn away without giving them any feeling. Turning away from what you don't love in someone means you are relaxed about it and you know life is giving you a choice. It doesn't mean that you argue with them to prove they are wrong, or you criticize or blame them, or that you want to change them because you think you're right. Because if you do any of these things, you're not giving love big time. You're एक 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 only इधर रुकता है, इधर रुकता है। अभी आपने हमने जो बात की वही बात आ गई कि जहां पर भी आप यू डोंट लव समथिंग इन अदर्स, यू डोंट हैव टू फोर्सफुली लव दैट, वह आपको डिस्टेंस बनने करना है। और सबसे बड़ी बात क्या बोली है, यू हैव अ चॉइस। आप याद रखना सारिका जी, रवीना जी, व्हेन यू टेक डिसीजन, पहले बोल तो डिसीजन मतलब क्या है कि आपको कुछ चूज करना है, तो किसी चीज को मारना है, बट वी ट्राई टू डिसाइड, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डिसाइड इज अ साइड, CID, हम चीज को मारते हैं, हमको मारना नहीं है। डोंट डिसाइड फ्रॉम टुडे व्हाट यू विल डू, विल स्टार्ट चूजिंग, नहीं मुझे ये ज्यादा पसंद है, मैं इसको चूज कर दूं, मैंने इसको ना नहीं बोला है, बट आई एम चूजिंग दिस थिंग। तो आपके घर पे हो या कहीं भी हो, रिलेशनशिप में भी आपको चूज करना है, दिस आर द क्वालिटी आई कैन एक्सेप्ट, दिस क्वालिटी आई कैनॉट एक्सेप्ट, आई विल से नो। मैं इसको मार नहीं रही हूँ, उसकी है, उसको रखने दे, पर मैं नहीं करूंगी, it won't work with me, so you have to have choice. So it is better to take, better than taking decision, you have to make a choice every day, every moment,
एवरी टाइम यू हैव अ चॉइस. जैसे खाना बनाना है आपको खाना आपको ही बनाना पड़ता होगा. समझो आपके घर पे, आई डोंट नो, मतलब हर का अलग बनता है. समझो आपको खाना बनाना है तो बनाना ही है. तो आप बोले इसमें चॉइस क्या है? देयर इज अ चॉइस. मैं खाना बनाऊंगी, इसलिए बनाऊंगी कि मेरे पति खाएंगे, मेरे सास ससुर खाएंगे और मेरे बेटे खाएंगे. एंड आई वांट टू गिव लव टू देम. ये मेरी चॉइस की मैं खाना बनाऊंगा. एक होता है मैं डिसाइड करती हूँ, नहीं नहीं अभी क्या कंट्रोल आ गया, फिर भी खाना बनाना पड़ेगा. आपकी हीन भावना जो आती है, जो वाइब्रेशन खराब आते हैं, वो खाने में भी जाते हैं. बट दैट टाइम यू चूज योर फ्रीडम कि मेरे को सबका अच्छा करना है, फिर आप स्माइल से करोगे, आप उसमें एक बड़ा प्यार डालोगी. तो ये खास सीखना आपको रिलेशनशिप में, एक खास सीखना है. जो चीज को आप नहीं पसंद करते हो उसको ना बोलना सीखना ही है. मगर जैसे मैंने बोला ऐसा है, बाय चूजिंग समथिंग. समझो आपको एक आइसक्रीम तो मैं एक चॉकलेट एक वेनिला, हमको लैंडमार्क में सिखाया था, यू कैन चूज इधर चॉकलेट वेनिला. बट यू ब्रिंग टू वेनिला, व्हाट विल डू? When there are two ice cream, you can decide also कौन सी लेनी है. But both are vanilla. Then you choose one of them. That's all. Nothing else. You choose one of them. तो ये लाइफ में भी याद रखना, you have to have a choice. कई बार लगता है खाना बनाना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, मुझे नौकरी में जाना ही पड़ेगा. You have a choice to be happy about it or to be unhappy about it. When you get up in the morning, you have a choice. Be happy about new day. अरे बाप रे आज भी जाना पड़ेगा हमें. So always you have a choice. कोई बोलता choice नहीं है. Every moment you have a choice. Okay? Yes, ma'am. Your own soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. King Solomon, circa 10th century BC, biblical king of Israel, Israel in in Proverb. हाँ. Your own soul, आपका खुद की आत्मा is nourished when you are kind. जब आप जिससे kind रहते हो, सबसे बड़ी बात क्या है ना सारे का, when you are kind to me, वो kindness कब आती है? जब आप अंदर kind feel करते हो. तो you have to be kind to yourself to give me kindness. You have to be a love, embody love to give me love. तो kindness आप जब देते हो, when you your own soul is nourished, जब आप kind होते हो किसी के साथ, you are nourishing your soul. It is destroyed when you are cruel. जब किसी से आप क्रूल होते हो, आप अपने आप से भी क्रूल होते हो. बिकॉज एवरीथिंग यू डू, यू फर्स्ट डू टू योरसेल्फ. आप जो भी बोलते हो पहले अपने आप से बोलते हो. जो भी सोचते हो, वो सोच तो अपनी होती है एनीवे, सॉरी. तो जो भी बोलते हो आप पहले अपने आप से बोलते हो, फिर बाहर आते हो. आप कैसे बोलते हो? दिमाग से, थॉट से बोलते हो अपने आप से. व्हेन यू आर बीइंग काइंड टू एवरीबॉडी, यू आर काइंड टू योरसेल्फ. तो आप काइंडनेस ला सकते हो. तो एनीथिंग यू डू, यू आर फर्स्ट डूइंग टू योरसेल्फ. तो वो नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगता है वही करो. यस मैम. when you are when you are on a feeling of frequency of love, then only people who are on the same feeling frequency as you are can come into your life. Yes, You, when you are on a frequency, एक मिनट किसने बोला है? नहीं यार. When you are on a frequency of love, जब आप लव की फ्रीक्वेंसी में हो, you everything have a frequency. जैसे रेडियो का जो आता है, 101 पे कुछ आएगा, 102 पे अलग आएगा, 109 पे अलग आएगा. Because there are different frequency. Same way in life में भी frequency है. There are some voice you cannot listen. जैसे वो डॉग विसल होता है, वो डॉग को सुनाई देती है लंबे तक, आपको कोई तकलीफ नहीं, बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी अलग है. आपके कान की फ्रीक्वेंसी अलग है और डॉग के कान की फ्रीक्वेंसी अलग है. So when you are in the frequency of love, it will automatically pull that love. उसी को आप खींचोगे. So then only people who are on the same frequency as you are can come into your life. वही आएंगे और कोई नहीं आएगा. Yes, ma'am. Sorry. you know, some days you feel really happy, some days you feel irritated, and others you feel sad. You can be many times version of yourself. A person in a relationship with you can also be many versions, including happy, irritated, or sad. No doubt you will have seen them being many different versions, but every version is still that person. When you are happy, then only the happy version of other people can come into your life. But you have to be happy to receive the happy version of other people. It doesn't matter, it doesn't mean you're responsible for other people's happiness, because everyone is responsible for their own lives and happiness. What it means is
There's nothing else for you to do but to feel happy yourself, and the law of attraction will do the rest. डू द रेस्ट. तो जो भी आपको चाहिए, लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, जो भी है चाहिए आपको, उसकी फ्रीक्वेंसी पे आपको आना पड़ेगा. हाउ विल कम ऑन द फ्रीक्वेंसी? बाय फीलिंग. फ्रीक्वेंसी इज अ सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन. फ्रीक्वेंसी ये फीलिंग सब क्या, ये सब वाइब्रेशन है. व्हेन यू फील लविंग, व्हेन यू फील हैप्पी, यू आर अंडर फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी एज अ वाइब्रेशन यूनिवर्स में एंटर करती है एंड गो एंड अट्रैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी एंड कम बैक. तो आपको जो भी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पे आपको आना पड़ेगा. लाइफ में जो भी चीज चाहिए आपके ड्रीम्स में, तो ड्रीम्स के लिए भी एक फ्रीक्वेंसी होती है. आपको बार बार याद करना है, उसको विजुअलाइज करना है, एफर्मेशंस बनाने हैं. एक मैं अलग से बात जरा बोलता हूँ. ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने मेरे को लिखा, कुछ क्रिटिकल हो गया, तो मैंने उनको एफर्मेशन भेजा, एफर्मेशन करिए आप, अच्छा. देन मेरे को मैसेज आता, नहीं वो नहीं रहे. तो कौन? तो था कोई, बोला उनकी सिस्टर थी. तो क्या था? तो बोलता कैंसर था. आई जस्ट टोल्ड देम, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. जिसको कैंसर था उसके लिए तो रिलीफ मिल गया, हो सकता है. आपको लगता हो कि वो, जैसे मेरी मदर है, शी हैड लंग फाइब्रोसिस. आई न्यू इफ दिस कंटिन्यू, द टाइम विल कम व्हेन शी विल बिकम एस्थमेटिक, और मतलब एक पैर भी उठाएगी तो उसको तकलीफ होगी. अगर कोविड में उनका देहांत हो गया, और रीजन कि इसे टाइम में ना, इस सब बीमारियों में पानी भरता है शरीर में, पानी निकालना पड़ता है. कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पर वो करना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है, 2 दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है. पर वो कोविड में वी कुड नॉट टेक टू हॉस्पिटल बिकॉज डॉक्टर सेड नो, कोविड है, लंग्स का बीमारी, आप मत ले आई. एंड ऑल ऑफ सडन वन डे उन्होंने दवाई दी है वो घर पे, और काम नहीं किया. शी कोलेप्स्ड, कोमा में गई, एंड शी पास्ड. आई वाज सो हैप्पी इन वन वे. एक दुख हो रहा था कि मैं मिस करूंगा, बट आई एम नॉट सेल्फिश कि मेरे खुद के बेनिफिट के लिए उनको दुख दूं. आई वाज रियली हैप्पी, इवन माय ब्रदर, कि आज चली गई, और 2 साल जीती थी, 3 साल जीती. कैसे? पूरा दिन ऑक्सीजन लेके घूमती थी पूरा दिन. शी डिडंट हैव गुड मोबिलिटी, शी वाज नॉट फ्री टू गो एनीवेयर. वो तो बहुत साफ थी मगज से, और बहुत स्ट्रेंथ वाली थी, इसलिए वांदा नहीं आया. शी वाज पुलिंग अप. बाकी तो उधर ही ढेर हो जाए. पर उसकी लाइफ क्या थी? तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दैट पेन जो आने वाला था, शी पास्ड अवे वेरी पीसफुली. कोमा में गई, कब गई उनको मालूम नहीं, हो गया. तो इसी तरह उनको मैं बोला, ये अलग से बात करो, ये इधर से कोई रिलेटेड नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इफ समबडी गोज अवे, आपको छोड़ता है, तो उसके बाद दुखी होने से, उसके साथ आपने जो पल गुजारे, जो भी सुंदर पल गुजारे, उसको याद करके बी हैप्पी अबाउट इट इंस्टेड ऑफ क्राइंग. ताकि उसको आप वाइब्रेशन दो, खुशी के, वो गया, वो चला गया ऊपर, उसको, उस सोल को छोड़ दो. जस्ट लीव दैट सोल, लेट इट बी हैप्पी वेयर एवर इट इज गोइंग. बिकॉज आज आप जो कर्म में मानते हो आप, तो आज आपकी डेथ होती है तो आपको और कहीं जाना पड़ता है. यू विल गेट अ बेटर लाइफ. इट इज अ प्रमोशन जो आपने अच्छे कर्म किए. तो जो आदमी कर्म नहीं मानते हैं तो फर्क क्या पड़ता है? आपने अच्छी लाइफ जी, अभी बीमार थे, गए तो भी क्या फर्क? तो इन एनी केस इट इज गुड टू बी हैप्पी बाय रिमेम्बरिंग ऑल द हैप्पी मोमेंट्स विद दैट पर्सन. ओके, ठीक है, आज अपन यही खत्म करते हैं. हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन अवर सेल्फ. एक और बोलते हैं ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, 384 322 BC. इज सॉरी, फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट. हम कल यहाँ चालू करेंगे पीईटी पेट्स. ओके, तो विल एंड हियर ओनली. अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? सर 9 o'clock, 9 o'clock, Yes, yes. 9 बजे. हाँ, अभिनव जी, हाँ, great. तो ये हम खत्म करते हैं. तो आज अच्छा लगा, मेरे को बहुत मजा आया पढ़ने में भी. आज कुछ अलग ही था सब्जेक्ट, और उसमें सारिका जी कुछ अलग निकाल दिया, रविलाल जी कुछ अलग बात निकाल दी. इट वाज ब्यूटीफुल. ओके, Correct, थैंक यू correct. एवरीबॉडी. यस. Okay, thank you, thank you.